everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with your chemistry lecture. This is your 128th lecture of chemistry. Already we had done your 127 lecture of chemistry that we had covered up till the last third unit. That unit 1, unit 2 as well as unit 3 we had covered up, and we have to discuss your unit 4. The name of the unit 4 is your chemical bonding and molecular structure. Okay, this is the name of the your unit 4, where we are discussing in this unit the chemical bonding of the structure and their molecular structure that they form by using an element combination, as well as the atom and their electron sharing. All these structures, all these molecular structures as well as their chemical bonding, that we'll discuss in this class. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। Now today we discuss your chemical bonding and molecular structure, and this is the fourth unit as I said you. So the matter is made up of one or different types of element. कोई भी matter जो exist कर रहा है environment में, हमारे अर्थ सर्फेस पे, तो वो आपका या तो फिर आपका different types of element का combination है या फिर एक element का combination है. Under the normal condition, no other element exists as an independent atom in nature except noble gases. तो कोई भी एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एग्जिस्टेंस में है कंडीशन में, तो वो आपका ईदर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन दैट आर एग्जिस्ट इन द नेचर, बट एक्सेप्ट द केसेस द noble gases can exist in a single form. The second point for this, the chemical bonding and the molecular structure that we have is, however, a group of atoms is found to exist together as a species having a characteristic properties such as a group of atom that is called molecules. जब आप atoms दो या दो से ज़्यादा combination बनाते हैं, then we form as molecule. Obviously, then that must be force which holds the constituent atom together in the molecules. What is attractive force that in a chemical bond that you have to understood, and this is the definition of the attractive force with reference to the chemical bond. The attractive force which hold various constituents like atoms or ions etc together in a different chemical species is called chemical bond. Chemical bond हम उसे कहते हैं जब अट्रैक्टिव फोर्स आपका चाहे एटम को होल्ड करे और चाहे आपके आयंस को होल्ड करे, अगर वो एक साथ होल्ड कर रहा है, दोनों की केमिकल स्पेशीज जो हो वो डिफरेंट हैं, अगर फिर भी अगर उसको होल्ड कर रहा है, देन दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड के बारे में अगर हम बात डिस्कस करेंगे फर्दर, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, बट दैट वी हैव टू डिस्कस फर्दर. With respect to the chemical bond, there are the Clausius-Lewis approach. This is the most important approach that has done with reference to the valence shell. So this is important if you had not known with this. So I think half of the things you don't get it. So these were the Clausius. These are the Clausius-Lewis approach. Valence शेल इलेक्ट्रॉन प्योर रिपल्शन, जिसे हम VSEPR थ्योरी बोलते हैं, दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्योर रिपल्शन थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड जिसमें आपका Clausius-Lewis अप्रोच में पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्योर रिपल्शन थ्योरी आता है, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आता है. तो दीज वर द थ्री थ्योरीज दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय द Clausius-Lewis approach when he explained his approaches, and the theories that they had produced, that they had introduced, that is the valence shell electron pure repulsion theory, valence bond theory, as well as molecular orbital theory. Now we'll discuss these all in the further way in one by one, but we start with the things that we have a Clausius-Lewis approach to the chemical bonding. The first one we will discuss this only. So now we're going to discuss there.
So here you can see that the Cossel-Lewis approach to the केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट पे कॉसल लेविस अप्रोच क्या होती है वो दैट वी हैव टू डिस्कस इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वो मेड। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड किए गए बाय द कॉसल लेविस टू अप्रोच को सिग्निफाई करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग के। But it was only in 1916 when Cossels and Lewis succeeded independently in giving the satisfactory explanation of valence, which has been based on the inertness of the noble gas. तो वैसे तो Cossels और Lewis दोनों ने ही बहुत ट्राई किया, बहुत एक्सप्लेन किया, बट उनके पास एक बहुत बड़े अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उन्होंने किया, बट कभी भी वो सक्सेसफुली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए नोबल गैसेस के इनर्टनेस को। बट 1916 ये वो ईयर है जब कॉसल्स एंड लिविस सक्सीड हो चुके हैं। उन्होंने बहुत ही इंडिपेंडेंटली सारे जो एक्सप्लेनेशंस थे वैलेंस के वो उन्होंने एक्सप्लेन किए इनर्टनेट्स ऑफ नोबल गैस के बारे में। उसके साथ साथ लिविस पिक्चर्ड द एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट दे आर नोन एज कर्नल्स। ओके, तो जो लुविस थे उन्होंने ये पिक्चर किया था कि जो एटम होते हैं वो पॉसिबिलिटी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन्हें उन्होंने कर्नल कहा था। द न्यूक्लियस plus the inner electrons and the outer shell that could be accommodate a maximum number of 8 electrons। तो उन्होंने बोला था जो पॉजिटिव चार्ज, लुइस थे उन्होंने ये बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के उसे कर्नल कहा गया है, जो कि न्यूक्लियस का प्लस इनर इलेक्ट्रॉन है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। He further assumed that those 8 electrons occupy in the corner of a cube which surrounded by the kernels. Thus the single outer shell electron of sodium would occupy one corner of the cube while the core of the noble gases of the 8 corners would be occupied. This octet of electron represents a particularly stable electronic arrangement। तो जो लेविस थे उन्होंने ये जिम किया जैसे कि क्यूब पे जो आपके 8 कॉर्नर्स होते हैं ना, दिस इज द 8 कॉर्नर्स दैट वी हैव। तो इसके उन्होंने बोला कि यहाँ पे ही ये जो 8 है, जो नंबर ऑफ मैक्सिमम उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बोले, तो उन्होंने बोला इस तरह से ही इलेक्ट्रॉन बनेगा। ओके, कॉर्नर्स में रहेंगे क्यूब के। फिर उन्होंने उसको ही सेटिस्फाई करते करते उन्होंने सोडियम के बारे में बताया कि जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ एक ही कॉर्नर पे क्यूब के रहेगा, और जो कि आपके नोबल गैसेस हैं उनके 8 कॉर्नर जो क्यूब के वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करके दिखाया था अपने टाइम पे 1916 के आसपास, जब उनको ये चीज़ रियलाइज होती कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। Now moving on with the next point that we have is this next point. Lewis postulates that atom achieve the stable octet when they are linked with the chemical bonds। तो लुइस ने ये भी postulate बताया था कि जो atoms हैं वो आपका स्टेबल ऑक्टेट ही तभी कर पाएंगे जब वो केमिकल बॉन्ड से अटैक्ट होंगे या केमिकल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे, तभी वो आपका स्टेबल ऑक्टेट को फॉर्म कर सकते हैं। In the case of the sodium and chlorine, this happens by the transfer of electron from sodium to chlorine, thereby giving the Na plus and Cl minus ions। So basically क्या होता है, अगर हम बात करते हैं सोडियम और क्लोरीन के बारे में, जैसे सोडियम का डिनोशन जो है वो Na होता है और क्लोरीन का डिनोशन जो है वो Cl होता है। ओके, सो इट यू कैन से दैट कि उसमें ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन में, इसी वजह से सोडियम से क्लोरीन में ट्रांसफ़र हो रहा है, इस वजह से Na के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है। ठीक है, इन द केस ऑफ द अदर मॉलिक्यूल लाइक Cl2, अब मैंने ये NaCl की बात की तो उसमें मैंने बताया कि ये Na प्लस और Cl माइनस हुआ। बट अगर मैं बात करती हूँ किसी और एलिमेंट के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसे कि Cl2 हो गया आपका, H2 हो गया, देन ये F2 हो गया आपका, ये सारे जो आपके क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, आपका हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, फ्लोरीन के साथ कर रहा है, तो ये बॉन्ड जो फॉर्म बनाएंगे वो शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। ये दो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपना शेयरिंग बनाएंगे एक दूसरे के साथ, वो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तभी वो शेयरिंग बना सकते हैं। जैसे कि H से आपको बॉन्ड करेगा, F जो है वो F से बॉन्ड करेगा, तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। इस वजह से ये आपके जो Cl2 H2
H2AF2 है, ये आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू शेयर कर सकते हैं अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को. In the process of each atom attains a stable outer octet of electron Lewis symbol. तो बेसिकली अगर हम हर एक एटम की बात करते हैं तो वो अपनी एक स्टेबल ऑक्टेट बना रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तभी वो शेयर करें एक दूसरे से. लेविस सिंबल की बात करते हैं तो इन द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके तो अगर मैं बात करती हूँ जब इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, तो जो उनके आउटर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ साथ उन केमिकल कॉम्बिनेशन को ही हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ओके विद रिस्पेक्ट टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो हियर द इनर शेल इलेक्ट्रॉन आर well protected and generally not involved in the combination process. That G.N. Lewis, an American chemist, introduced the simple notation to represent the valence electron in an atom. These notation are called Lewis symbols. Lewis symbols क्या होते हैं? जो inner shell of electrons आपके जो protected हैं और even though they are generally not involved in the combination process. तो जो G.N. Lewis थे वो एक American chemist थे, as I said you before also. इन्होंने बताया कि वो नोटेशंस जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो एटम के, वो नोटेशंस को ही उन्होंने लुइस सिंबल्स को डिनोट किया. वो notations क्या थे that we gonna discuss here. For example, the Lewis symbols for the elements of the second period are as under. So now we are going to discuss the second period. Second period में जो आपके elements थे, पहला आपका लिथियम था, बेरियम था, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. अब लिथियम की बात करते हैं. लिथियम के जो एलिमेंट नंबर होता है वो 3 होता है, 3. ओके सो क्योंकि हाइड्रोजन का फर्स्ट होता है, हीलियम का सेकंड होता है, लिथियम का थर्ड होता है. अब थर्ड लिथियम की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले उसके शेल में चले गए, तो उसका रिमेनिंग जो बचा वो 1 बचा. तो इन्होंने Li का एक लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है. अब विद रिस्पेक्ट टू बेरियम की बात करते हैं तो बेरियम का आपका क्या होता है, 4 होता है. ओके 4 होता है आपका एटॉमिक नंबर, जिसमें से 2 तो उसके शेल पे, पहले वाले शेल पे चले गए, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए. तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया है. अभी ये आपका लुईस सिंबल रिप्रेजेंटेशन है. फिर बोरॉन पे बात करते हैं तो बोरॉन का 5 होता है. 5 में 2 उसने तो पहले शेल में चला गया, बचा रिमेनिंग 3, तो 1 2 3 इस तरह से बोरॉन के लिए रिप्रेजेंट किया गया है. कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसमें से 2 तो पहले ही चला गया, तो 6 2 -2 दैट इज 4, तो 4 बचा. तो 4 का रिप्रेजेंटेशन कार्बन का इस तरह से किया गया है. फिर आते हैं नाइट्रोजन के बारे में. नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. 7 में आपका 2 चला गया है ऑलरेडी पहले शेल में, तो 7 - 2 दैट इज 5. तो इसका 5 का रिप्रेजेंटेशन आपका नाइट्रोजन का 2 यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है. फिर आते हैं ऑक्सीजन के बारे में. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. 8 में से 2 तो पहले ही ऑलरेडी चले गए फर्स्ट शेल में, रिमेनिंग बचा 6, तो 8 - 2 दैट इज 6. तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 6 रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोएस्ट सिंबल्स ऑफ दोस एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड. नाउ कमिंग टू द फ्लोरीन. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है, तो इसलिए 2 तो ऑलरेडी वहाँ चले गए, बचा 7. तो ऑब्वियस ही बात है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये रिप्रेजेंटेशन है फ्लोरीन का. अब नाउ कमिंग टू द नियॉन. नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, जिसमें से 2 आपके फर्स्ट शेल में चले गए रिप्रेजेंटेशन में, तो बचा आपका 8. तो 8 का रिप्रेजेंटेशन नियॉन का सिंबल होता है Ne. आपका 2 1 2 3 4 5 6 7 8 रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आ गया. तो लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये आपका सेकेंड पीरियड का रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू द लेविस symbol of those element. Now moving on with the next that we have for the with respect to the Lewis structure. With respect to the significance of Lewis symbol, अगर हम significance of Lewis symbol की बात करते हैं, so the number of dots अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो कि भी मैंने आपको डॉट्स के थ्रू सिंबल्स बताए हैं, तो जितने नंबर ऑफ डॉट्स उसके सिंबल के पास होंगे वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेगा. तो जैसे लिथियम में मैंने 1 को शो किया था, देन बेरियम को 2 में, बोरॉन 3, तो उस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट्स थे आपके, वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एलिमेंट में अवेलेबल है. देन
दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प्स टू कैलकुलेट द कॉमन और अ ग्रुप वैलेंस। तो इसी जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही आपको हेल्प करता है एक कॉमन ग्रुप वैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए। So this number or the group valence of the element is generally either equals to the number of dots in the Lewis symbol or the 8 minus the number of the dots on a valence electron. Okay, so these were the representation that I had explained you before. These were the representation that is equals to the number of dots in the Lewis system, and even though you can say that on 8 minus the number of the dots of the valence electron, you can justify the electronic number. Here you can see that the causes in the relation, the chemical bonding drew attention of the following facts. So causes ने कुछ एक relationship दिखाया जो कि chemical bonding के reference में था, और उसके कुछ facts ये हैं आपके। In the periodic table, the highly electronegative halogens, अगर हम periodic table की बात करते हैं तो highly electronegative halogens and the highly electropositive alkali metal are separated by the noble gas. तो अगर मैं बात करती हूँ highly electronegative halogens, I'm talking about the chlorine, bromine, chlorine, bromine, आयोडीन, उनकी बात करती हूँ। और अगर मैं बात करती हूँ नोबल गैसेस की तो दिस इज नियॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ये वाले नोबल गैसेस हैं। और आपके अल्कली मेटल्स, दीज वर द फर्स्ट ग्रुप दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, तो दैट इज़ अगर मैं बात करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू द पीरियोडिक टेबल, अगर आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स हैं तो वो आपके नोबल गैसेस के थ्रू सेपरेट किए जाएंगे। The formation of a negative ion from the halogen atom and a positive ion from an alkali metal atom is associated with the gain or loss of an electron by respective elements. तो जैसे जैसे अगर आपका मान लो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द हैलोजन एटम्स के थ्रू, और पॉजिटिव आयन का आपका फॉर्मेशन होता है तो अल्कली मेटल्स के थ्रू, तो वहाँ पे आपका गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट एटम्स. Now next that we have next point that we have, the negative and the positive ions thus formed attain stable noble gas electronic configuration. The noble gas, with the exception of helium, which a duplet of electron, तो जब exceptions of helium की हम बात करते हैं जिस जो कि आपका duplet बनाता है इलेक्ट्रॉन का, have a particularly stable outer shell configuration of 8, that is octet electrons, that is ns2 np6. This is the configuration for the 8 electron, ns2 np6. This you have to remember very well. Now moving on with the next that we have is the negative and the positive ion are stabilize the electronic attraction. जो negative और positive ions है वो stabilize होंगे electronic attraction के ही through. For example, the formation of NaCl, अगर हम formation of NaCl की बात करें from the sodium and chlorine according to the above scheme that can be explained as, Na की बात करते हैं, देखो Na है तो ये Na plus बनाएगा विद लूजिंग, अगर Na प्लस बनाएगा तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन उसमें एड ऑन होगा, मूव करेगा. Ne3s2 is the electronic configuration of ns2 and Ne, this is you can say that anion. क्लोरीन में अगर E आपका इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो Cl माइनस बनाएगा. Ne है 3s2 3p5, Ne3s2 3p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपका इसका आर्गन के या फिर आर्गन भी आप कह सकते हो. Na प्लस एंड Cl माइनस अगर कॉम्बाइन करेगा तो ऑफकोर्स NaCl बनाएगा, एंड या फिर Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा. ओके, दिस इज द एक्चुअली सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ, अभी जैसे NaCl का बनाया वैसे CaF2 का बना सकते हैं हम. Ca है, Ca2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एड ऑन होंगे तो Ar4s2 बनाएगा आर्गन के साथ. ओके, एंड देन ये है इट इज़ ए आर्गन, एंड देन फ्लोरीन के साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो F माइनस बनाएगा. हीलियम 2s2 2p5 and helium 2s2 2p6 or anion. एंड विद रिस्पेक्ट टू द हेयर कैल्शियम की बात करती हूँ, सॉरी हाँ या कैल्शियम की बात करती हूँ 2 प्लस में, तो 2Fe अगर उसमें जुड़ेगा तो CaF2 बनाएगा या फिर Ca2 प्लस F माइनस 2 का हमारा कॉम्बिनेशन बनाएगा. The bond formed as a result of the electrostatic attraction between the positive
and negative ion was termed as electrovalent bond, जो कि आपका जो बॉन्ड फॉर्म करता है अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू लाइक पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस के थ्रू बनता है तो हम उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं. The electrovalent is thus equals to the number of unit charge on the ion. जो number of unit charge होता है ये वाला तो उसे ही हम कहते हैं उसके ions. Thus the calcium is assigned a position electron that is electrovalence of 1. तो calcium जो है उसके पास of course यहाँ पे 1 का आपका पॉजिटिवली चार्ज 1 है, इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस जो है वो 1 है. Next, moving on with the next point that we have. So after this we have to discuss your causal postulation that provides the basic modern concepts that and then further class में हम octet rule को even though covalent bonds जो है उसको discuss करेंगे. Okay, so ये हम next class में discuss करेंगे. तो class आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give your suggestion on the comment box. Thank you.